Hello people, in this video you are gonna learn about the language Java. We are gonna study about the history of Java, like who was the first person and when was Java first invented basically, when was the first time Java language was used to develop some program or everything about that, okay, and who developed it, where it was developed and how it came to be known as Java, and was it called something else previously or not, okay. Then there are features of Java. There are some features of Java that tells us whether it's secure language or not, whether it can be used to develop the big applications. I mean, if you develop big application, it is given that it should be secure, okay. Then what are the fundamentals of Java, and there is a summary at the end of the video, so I hope you like it, okay. Now we'll learn about the definition of Java. What is Java? Like, what are the feature we like like how do we define something? It tells us about it. It's basically a summary about what is the language Java, okay. So Java is a high level class based object oriented programming language, okay. We know that this is programming. If you came to watch this video, you know what a programming language, and there are many programming languages, okay. There is Java, then there is C or C++, then there are Python and many other languages, okay. Nowadays there are if we are gonna go and Google it, we will find a number of languages, okay. According to what we want to do, there are different type of language. What we are gonna work with, there are different type of languages which are suitable, okay. So this is, but Java, if we talk about Java, it is number one. We can say number one, or in some cases it can be number two, but it is one of the best language that is used in big like if you want to do a higher level programming, Java is the best, okay. So Java is high-level, class-based, object-oriented programming language designed to have a few implementation dependencies as possible. Okay, as few implementation dependencies as possible. We'll learn about what this word mean. Okay, in further slide. It is a computational platform. Sorry, it is a computing platform where application can be developed and run. Here, application means program can be developed and run. Okay, it is. This is a very important point. Okay, write once, run anywhere. Java is write once, run anywhere programming language. C++, which can be like Java and C++, they are mostly on same level, but this is not. C or C++ is not a write once and run anywhere language. Okay, we'll learn about why it is write once and run anywhere language in further video. In the end of the video, you'll learn about why it is a high level language, why it is class based object oriented, what does it mean to be an object oriented programming language, and why does it gains the nickname WORA. Okay, compiled Java code can run on all platforms that support Java without the need of recompilation की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको यहाँ पे. Okay, compiled Java code can run on all platform that support Java. सारे प्लेटफॉर्म जो कि Java को सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा मैक हुआ, हमारा जो लिनक्स वगैरह हुआ, इन सब पे हम जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते. वी जस्ट नीड अ जावा वर्चुअल मशीन ऑन इट, एंड एक बार हमने कंपाइल कर दिया इसको तो हमको रिकम्पाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, सो नाउ वील लर्न अबाउट दीज कीवर्ड्स. व्हाट डज इट मीन बाय हाई लेवल और क्लास बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर दैट मैटर. ओके, so what does it mean by Java being a high level language? Java being a high level language means syntax जो है Java का, the syntax of Java is written in English language. Okay, English language, what does it mean? I mean, anyone who is like we people who learn about syntax or the programming language, it's different matter for us because we know what does this particular thing mean. But in case of Java being a high level language, any person who is not familiar with the syntax, they can also read, they can also understand it. For example, we gave the sign language, for example. I mean, I don't remember. Like, for example, animal and dog. So what do you understand by this sentence? Dog is an animal. Dog is something that belongs to this animal kind. Okay, animal kind of species. Okay, so this is what it means by Java being a high-level language. Just syntax, like the syntax we write, it is written in English language. Most probably we can understand, even though we don't know what is happening in other part of the program, but in a particular method we can understand simply, oh, it's doing this thing. Okay, so it is human readable, and C or C++ are also human readable, because like why I have written this, because the Java language that is derived from C or C++. Okay, ये पहले आ गया था, and Java जब हमारा आया तो उसने मतलब it is basically a parent of Java, but बच्चा आगे निकल गया. Okay, ये हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है फिर? लो लेवल लैंग्वेज मशीन असेंबली लैंग्वेज. कोई मशीन लैंग्वेज समझते हो आप क्या होता है? 0 1 1 0. अब मैंने आपको कुछ बोलना, मैं ऐसे बोल रही हूँ, ऐसे कोड लिख के भेज रही हूँ मैं, आप समझेंगे? नहीं समझेंगे ना, ये डिफिकल्ट होगा समझने में. चलो आपको समझ में आ रहा है, बट दूसरा नहीं समझेगा ना ये क्या है. तो दीज आर लो लेवल लैंग्वेज दैट यूज मशीन असेंबली लैंग्वेज. ओके, देन व्हाट डज इट मीन बाय जावा बीइंग क्लास बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? क्लास बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स जो हमारा जो कोड होता है ना, वो जब हम कोड बनाते हैं तो उसमें क्लास, लाइक इट इज़ वेरी बेसिक थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर कि जावा में बिना क्लास के कुछ नहीं होगा. आप जब क्लास बनाओगे तो क्लास के अंदर ही आप कुछ कर सकते हो.
Okay, this is first and foremost thing we need to do if we gonna make program in Java. Okay, class is like a blueprint. क्लास के अंदर सब कुछ हो रहा है. क्लास के अंदर 10 मेथड्स बना सकते हो आप, मेथड 1, मेथड 2. ओके, देन ऑब्जेक्ट जो होता है, एवरी डेटा विद इन प्रोग्राम इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस. सो जो कोड है हमारा जावा का, जो कोड बनाते हैं वो क्लास और ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है. क्लास जो होती है हमारी ब्लूप्रिंट होती है, ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा डेटा होता है. ठीक है. अच्छा, ये चीज़ हम क्यों करते हैं? वाई डू वी डू दिस? वी डू दिस बिकॉज वी डू दिस इन ऑर्डर टू मेक जावा लैंग्वेज अ मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल कोड. जावा लैंग्वेज में हमको अगर मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल कोड चाहिए तो हमको क्लास बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रखना पड़ेगा जावा लैंग्वेज को. मॉड्यूलर समझते हो आप, एक एक मॉड्यूल में, जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास बना दी एडिशन की. ठीक है, एडिशन ऐड करने का मेथड बना दिया, मेथड बना दिया ऐड करने के लिए. अब ये एडिशन वाला मेथड हमको 3+5 करना है तब हम कॉल कर सकते हैं. हमको 100+200 करना है तब हम कॉल कर सकते हैं इस मेथड को. वी कैन कॉल दिस एनी नंबर ऑफ टाइम्स. एक क्लास के अंदर हमने अगर एक बार इसको डिफाइन कर दिया तो हम इसको कितनी भी बार, जैसे ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हम तब इसको कॉल, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हम तब इसको कॉल कर सकते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं मॉड्यूल. दिस वन मॉड्यूल कैन बी कॉल्ड एन नंबर ऑफ टाइम, तो इसीलिए ये मॉड्यूल रीयूजेबल हो गया. ठीक है ना. अच्छा, इम्प्लीमेंट डिपेंडेंसीज इसकी फ्यू है. व्हाट डज दिस मीन? कोड जो है वो कहीं भी रन कर सकता है जिसमें रीराइटिंग की और रिकम्पाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. ये हमने देखा था ना, WORA, राइट वंस एंड रन एनीवेयर. ओके, राइट वंस एंड रन एनीवेयर. व्हाट? ओके, सो दिस यू अंडरस्टूड राइट. क्यों ऐसा क्यों होता है राइट वंस रन एनीवेयर? क्योंकि हम इसको जावा का जो कोड, सोर्स कोड होता है ना, सोर्स कोड मतलब जो हम लिखते हैं ना, उससे डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता है जावा में. कहाँ किस में कन्वर्ट होता है? सोर्स कोड जो है हमारा बाइट कोड में कन्वर्ट होता है. किस में कन्वर्ट होता है? बाइट कोड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, जावा का जो सोर्स कोड है बाइट कोड में कन्वर्ट होता है. और फिर जब बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये किसी प्लेटफॉर्म पे हम इसको रन, इस बाइट कोड को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं. बस हमको क्या चाहिए? जावा वर्चुअल मशीन चाहिए, वहाँ पे JVM की जरूरत है. ठीक है, JVM की जरूरत है, बाकी हम कहीं पे भी इसको रन कर सकते हैं. अच्छा, फ्यू इंप्लीमेंटेशन डिपेंडेंसी, ये समझ गए आप क्यों, मतलब, और जावा इतना स्पेशल क्यों? क्योंकि जावा के पास मैसिव अमाउंट ऑफ API होता है. API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है इसका फुल फॉर्म. ठीक है, बट ऐसे समझो बहुत सारी लाइब्रेरी होती है इसके पास. इट हैज़ अ मैसिव लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी, यू कैन थिंक ऑफ लाइब्रेरी एज कुक्ड थिंग्स आर स्टोर्ड देयर. हम फिर उन चीज़ों, पकी हुई चीज़ों को हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम से कॉल करके कि अच्छा मैथ की बहुत सारी, जैसे लाइब्रेरी के अंदर ना एक मैथ क्लास होती है. हमने पढ़ा ना कि क्लासेस आर ब्लूप्रिंट. तो मैथ क्लास के अंदर हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे आपको निकाली ना कि माइनस ऊपर कुछ ना आए, उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकल गया, तो उसके लिए मैथ डॉट एप्स करके यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, पावर फंक्शन यूज़ करना है तो मैथ डॉट पाव करके यूज़ कर सकते हैं उस फंक्शन को. ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है तो मैथ डॉट एस स्क्वायर करके हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे करके जावा के पास बहुत सारी लाइब्रेरी होती है. ठीक है, फिर JVM जो है मैंने बताया ना, JVM इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. जावा वर्चुअल मशीन जो होते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए हम अपने बाइट कोड को कहीं भी रन कर सकते हैं. ठीक है, और सारी फाइल्स हमारे पास डॉट क्लास फाइल्स रहती हैं. ठीक है ना, क्लास हमने बोला ना सबसे इंपॉर्टेंट जावा में क्लास बनानी रहती है. ओके, देन वी लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ जावा. जावा का ओरिजिन 1991 में हुआ था. किसने किया था? जेम्स कोसलिंग ने किया था. किसने किया था? जेम्स कोसलिंग ने किया था. कहाँ पे? सन माइक्रो सिस्टम्स. उन्होंने उनकी टीम के साथ में सन माइक्रो सिस्टम्स, जिसको अभी ऑरेकल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे किया था. ओके, ओरिजिनली जावा वाज कॉल्ड ओक. ओके, जावा वाज नॉट नेम्ड जावा फ्रॉम द स्टार्टिंग. ओके, फर्स्ट इट वाज नेम्ड ओक एंड यू कैन सी दैट ही डिडंट गिव अ सिंगल एफर्ट व्हाइल नेमिंग द लैंग्वेज. इधर इट ओक और जावा, ही डिडंट गिव अ थॉट. उसके दिमाग में जो आया उसने रख दिया. ओके, सो रिमेंबर जावा वाज ओरिजिनली कॉल्ड ओक. ओके, so basically the original goal was to create a language for interactive television and embedded system setup boxes के लिए. ओके, the evolution कैसे हुआ? 1995 में, 1991 में इन्होंने इन्वेंट किया था, फिर 1995 में इन्होंने रीनेम किया जावा और पब्लिकली इसको रिलीज कर दिया. ओके, देन 2009 में ओरेकल कॉर्पोरेशन एक्वायर्ड सन माइक्रो सिस्टम्स एंड बिकेम द ओनर ऑफ जावा. इसीलिए इसका नाम अभी ओरेकल के नाम से जाना जाता है. ओके, सन माइक्रो सिस्टम्स को ओरेकल ने 2009 में एक्वायर कर लिया था एंड दे बिकेम द ओनर ऑफ जावा. Then there are many versions of Java that comes like in few years or a few months. Okay, for example, first was JDK 1.0 in 1996, first stable version था ये. Then JS2E 1.2 in 1998, then Java 5 in 2004. यहाँ पे generics, annotations and enumerations को इन्होंने introduce किया. Then Java 8 in 2014, a major shift introduced lambdas and stream APIs, functional programming features होते हैं ये. These are like you just need to remember that 2014 का जो Java का 8th version जो था ना, जो Java 8 आया था, they introduce lambdas. Lambdas are basically there are nothing but functions जो कि हमारे प्रोग्रामिंग को कंसाइज या फिर साफ सुथरा दिखाते हैं. ओके, like we can understand them as functions. Okay, functions, yes, just remember the name lambdas and stream APIs. Stream APIs are basically tools that are used for processing that can be used for processing collection of objects, but it's not a data structure. For example, lists हो गए, array हो गए आपके, तो ये stream APIs में आ जाएंगे. ठीक है, but it itself is not a data structure. Okay, अब प्रेजेंट डे में जावा कंटिन्यूज टू इवॉल्व विद न्यू रिलीज एवरी 6 months. ओके, लॉन्ग टर्म. हाउ जावा वर्क? प्रॉब्लम हमारी क्या है
हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अलग अलग तरीके की लैंग्वेज, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज. व्हाट इज द सॉल्यूशन कि हमारा जो है जावा डज नॉट कंपाइल को डायरेक्टली इनटू मशीन कोड, इट कंपाइल्स इनटू बाइट कोड में कंपाइल करता है पहले इसको. ओके, सोर्स, ओके, प्रोसेस क्या होती है, सोर्स कोड जो होता है ये हमारा सोर्स कोड हुआ, ठीक है, जो हम लिखते हैं माई प्रोग्राम डॉट जावा. देन कंपाइलर जो है जावा के नाम से ट्रांसलेट्स इनटू बाइट कोड. बाइट सोर्स कोड हुआ माई प्रोग्राम डॉट जावा, इट्स कन्वर्टेड इनटू माई प्रोग्राम डॉट क्लास, दिस इज आर बाइट कोड. ओके, ये कौन इसको ये करता है, कंपाइलर इसको कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को बाइट कोड में. देन दिस JVM पे इसको रन करोगे आप किसी भी डिवाइस पे एंड इट गिव्स अस आर रिजल्ट. ओके, की फीचर्स ऑफ जावा, इट इज़ अ सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, secure, robust, multi-threaded language. These 6 things we need to remember. It is simple, object oriented. We can remember it like that. It is Java is a simple and secure, secure, robust, strong, simple, secure, object oriented, platform independent, secure language. It is robust or strong, multi-threaded. We'll just go through it because we understand, like you can understand what it means by these things at this point of time. Simple means syntax is based on C++, मदर, बेसिकली फादर एंड मदर ऑफ जावा. बट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स लाइक पॉइंटर, जो C++ के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स है ना, जैसे पॉइंटर्स हुआ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दीज आर नॉट इनहेरिटेड बाय जावा लैंग्वेज. ओके, दे यूज सिंपल मेथड्स लाइक रेफरेंसेस आर यूज्ड इन जावा. या फिर यहाँ पे ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है पॉइंटर्स की, बिकॉज यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो गार्बेज कलेक्शन, जो JVM का गार्बेज कलेक्शन वाला जो फंक्शन है दैट क्लियर्स आउट द मेमोरी एंड एलोकेशन भी वहीं से होता है. ठीक है, और रेफरेंसेस का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे. वी डोंट नीड पॉइंटर्स और ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये होते हैं ना, ऑपरेटर्स प्लस हुआ आपका, माइनस हुआ आपका, मल्टीप्लाई हुआ आपका और डिवीजन हुआ आपका, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं. यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती है. मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब ऑपरेटर जो काम करने को है, मतलब प्लस में वो 3+5 भी करेगा, बट इस ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर सकते, उससे कुछ और काम करवा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जो हमारा प्लस का साइन रहता है ना, वो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, कॉन्कैटिनेट मतलब बेसिकली जैसे ABC प्लस DEF, ये हमारी स्ट्रिंग है, इसको कॉन्कैटिनेट करके मतलब मिला देना इनको, तो इसका आंसर हो जाएगा ABCDEF, ऐसे ऐसे करके. ओके, तो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन टू दिस डेफिनेशन. what do we use instead of operator overloading, descriptive methods are used. ओके, जैसे कि बिग इंटीजर जो क्लास है उसके अंदर डॉट ऐड करके जो फंक्शन है या फिर डॉट मल्टीप्लाई करके जो फंक्शन है वो ये यूज़ किया जाएगा एडिशन, ऐड के लिए, और ये यूज़ होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए. ओके, it is easy to learn for beginners, therefore it is simple. Okay, then object oriented, we know about this. Okay, everything in Java is an object, organizes software design around objects, those are data, and classes that are blueprints. Okay, concepts like inheritance, encapsulation, polymorphism, and abstraction, we'll come back here. Okay, again first we'll learn about these. It is platform independent, unlike C or C++. Java code compiles into bytecode. We understood this bytecode is platform independent, yes, and can run on Windows, Mac or Linux as long as they have JVM होना चाहिए बस. Then next is Java is secure, no explicit pointers, prevent no explicit pointers are there जो कि unauthorized memory access को prevent करते हैं. ओके, बाइट कोड वेरिफिकेशन ensures code doesn't violate right, बाइट कोड वेरिफिकेशन जो होता है ना, बाइट कोड में कन्वर्ट किया कोड को हमने सोर्स कोड को, तो इट इंश्योर्स कोड डजंट वायलेट एक्सेस राइट्स. ओके, रन्स इनसाइड द सैंडबॉक्स. सैंडबॉक्स बेसिकली इट इज अ प्ले एरिया टाइप ऑफ थिंग फॉर वेब और एप्लेट एग्जीक्यूट. ये समझते हो, वेब में आप कोई प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो उसको बोलते हैं वेब और वेब एप्लेट. ओके, देन इट इज़ अ रोबस्ट लैंग्वेज दैट इज स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन के थ्रू. एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है, इट अलाउज प्रोग्राम टू रिकवर फ्रॉम एरर्स ग्रेसफुली. ओके, एरर इसमें जो एरर रिजॉल्विंग कैपेसिटी जो होती है जावा लैंग्वेज की, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, टाइप चेकिंग एंड कंपाइल एंड रन टाइम. टाइप चेकिंग बेसिकली डेटा का टाइप चेक, जैसे कि ये कोई डेटा इंट का है या स्ट्रिंग का है या कैरेक्टर का है, तो इट चेक्स द डेटा टाइप एट कंपाइल टाइम एज वेल एज रन टाइम. ओके, it is multi-threaded means it can handle multiple tasks simultaneously within a single platform, multiple tasks simultaneously within a single platform. Okay, then great for creating interactive applications like games or servers. Interactive application, you understand that there is input from both the sides. For example, this video I am making is not an interactive video, but if I go live and there I am explaining something to you and you can question from the other side, it is an interactive video. Okay, then we come back to this concept like inheritance, encapsulation, polymorphism, and abstraction. What do we mean by inheritance? Java, these four are pillars of OOP, that is object oriented programming. These are pillars of OOP. Okay, what does these pillars do is these pillars help any programming language in being modular. मीन्स एक मॉड्यूल पे काम कर, एक मॉड्यूल सेपरेट मॉड्यूल्स बना के काम करेंगे. अब क्योंकि ये मॉड्यूलर है तो ये रीयूजेबल भी हो गया ना, हम उस मॉड्यूल को कहीं पे भी नीचे वी कैन यूज अ पर्टिकुलर फंक्शन, वी कैन यूज अ पर्टिकुलर मॉड्यूल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विद इन अ प्रोग्राम. ओके, एंड दैट मेक्स अस द जावा सॉफ्ट एंड सिक्योर. ओके, सिक्योर एंड स्टेबल. Okay, so first concept is inheritance. What do you understand by the word inheritance? Inherit कर रहा है. Okay, inherit कर रहा है मतलब ऐसे सोचो, यहाँ पे एक क्लास होती है A, ठीक है, there is a class named A, but
there is also a class named B. Now this class A is animal class, and this class, for example, this is not B, we can name it class D. Okay, this class is a dog. So this is our super class. मतलब इस क्लास एनिमल के अंदर क्लास डॉग आता है ना, लाइक डॉग इज पार्ट ऑफ द एनिमल कैटेगरी. सो दिस इज सुपर क्लास एंड दिस इज सब क्लास. ओके, sorry. Superclass and subclass. Inheritance basically means the code is reusable. Okay, you understood this example, right? What do we mean by super and subclass? For example, in maths we understand superset and subset. The same concept is being used here. There is a superclass and there is a subclass, and within one superclass there can be many subclasses. Okay, then second one is encapsulation. Encapsulation means data को hide करना. ओके, डेटा को हाइड करना मतलब एक फॉर एग्जांपल जस्ट अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल, आप कार को जो है ना ड्राइव करते हो तो आपको एक हैंडल दिखता है जिसको आप चलाते हो, आपको नीचे जो एक्सेलेटर और जो और भी चीज़ें होती है, ब्रेक वगैरह, क्लच वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होती है. बट कार के अंदर क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग विद इन द इंजन्स और विद इन दी जो आगे का डब्बा रहता है उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, यू डोंट गेट टू सी इट. ओके, यू डोंट नीड टू डील विद इट, यू जस्ट नीड टू डील विद आउटर components. So that is what data hiding does. Okay, we can only see the beautiful outer cover and we don't know what's happening within the box. Okay, that is encapsulation. Okay, अच्छा हाँ, हम यहाँ पे मतलब ऐसा होता है, क्लास को पब्लिक बना दो तो सब देख पाएंगे इसके अंदर क्या है, क्लास को प्राइवेट बना दो तो नो बडी कैन, ओनली हमने जिसको परमिशन दिया सिर्फ वो लोग ये कर सकते हैं, क्लास को एक्सेस कर सकते हैं. देन देयर कम्स अ पॉलीमॉर्फिज्म फीचर. पॉलीमॉर्फिज्म फीचर मीन्स इट हैज़ मैनी फॉर्म्स. ओके, मैनी फॉर्म्स. हम फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट्स सी इट बाय एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग. ओके, व्हाट इज ओवरलोडिंग? हमने एक फंक्शन है इंट ऐड करके हमने यहाँ पे जो इंटीजर्स पास किए, फॉर एग्जांपल इंट ए और इंट पी. ओके, दिस इन आगे चल के हमने इन पैरामीटर्स को जो है ना चेंज कर दिया, कोई और पैरामीटर्स इसके अंदर डाल दिए, तो इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग. एंड ओवरराइडिंग इट बेसिकली मीन्स वी ओवरराइडिंग मीन्स इट बेसिकली मीन्स दैट वी फंक्शन को इटसेल्फ हमने ओवरराइड कर दिया. ठीक है, नॉट द पैरामीटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शन इटसेल्फ. ओके, जस्ट वेट अ मिनट. yes, what is overloading? You understood what overloading means? Overloading means हमने उसके पैरामीटर्स को चेंज करके और दूसरे पैरामीटर्स डाल दिए, बट हमारा काम सेम होना है, इसीलिए इट डजेंट मैटर व्हाट वी पुट इनसाइड इट. ओके, बट व्हाट इज ओवरराइडिंग मेथड? ओवरराइडिंग मीन्स इट अलाउज अ सब क्लास टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन फॉर अ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन पेरेंट क्लास. ठीक है, इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ करते हैं. ठीक है, समझ रहे हो आप क्या मैं बोल रहा हूँ? वो मेथड ओवरराइडिंग में इट अलाउज अ सब क्लास जो जैसे कि हमने अभी बताया था क्लास एनिमल था और फिर क्लास के अंदर क्लास डॉग था, है ना, तो मतलब जैसे इसका किसी का रिटर्न टाइप कुछ और होगा और कुछ और रिटर्न टाइप डाल दो, समझ रहे हो आप? जो सिग्नेचर मिसमैचेस होते हैं ना उनको एक्सेस करने के लिए, उनको कैच करने के लिए हम ओवरराइडिंग का यूज़ करते हैं. ठीक है, बट वी लर्न इट एंड फर्दर. आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द एग्जाम्पल आई नीड टू गिव इन दिस वन, बट येस वी लर्न इट फर्दर. ठीक है, देन वी लर्न अबाउट एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कैसे करेगा. जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फीचर, जावा इज एन एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज. व्हाट डज इट मीन बाय द सेंटेंस? इट हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी. फॉर एग्जाम्पल इसमें इंटरफेसेस का यूज़ करते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी यूज़ करते हैं. ओके, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आप जानते हो, मतलब इन लेमन टर्म्स व्हाट डज एब्स्ट्रैक्शन मीन्स? इट मीन्स हाइडिंग समथिंग. ओके, अंदर की जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन की जो डिटेल्स है उसको हाइड करके सिर्फ एसेंशियल फीचर्स को अगर शो कर रहे हैं. ठीक है, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन वॉट एन ऑब्जेक्ट डज, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ना कि कैसे कर रहा है. अंडरस्टूड? देयर कैन बी पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन भी होता है. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू हम 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन, कोई भी तरह का एब्स्ट्रैक्शन ये कर सकते हैं. ओके, देयर कैन बी पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन, then there can be 100% abstraction. Okay, that's it for this, right? Then Java ecosystem. To work with Java you need to understand 3 acronyms, that is JVM, Java Virtual Machine, then JRE, Java Runtime Environment, and JDK, Java Development Kit. This is basically it. The JDK consists of Java Runtime Environment, okay, then compilers JVM, and then debuggers, that is JDB. Okay, it consists of all 3 of them. Okay, what is Java Virtual Machine? An engine that runs the bytecode. We learned it previously. It makes Java platform independent. Yes, Java Runtime Environment, it contains JVM as well as the libraries. We understood libraries, for example math library, we learned about it. Okay, math library, use this if you only want to run Java application. Yes,
जावा ये आगे नाम ही लिखा है, तो इसको अब सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस को कैसे ही चलाओगे, सी प्लस प्लस वाले लैंग्वेज वाले प्रोग्राम को कैसे ही चलाओगे. ओके. सो एंड देन कम्स JDK, Java Development Kit. It contains a JRE, that is runtime environment, compiler, that is JVM, then debugger, that is JDB, Java debugger. Okay. What does debugger do? It inspects and controls the program execution in real time. Okay. डिबगिंग. ओके. बग को डिबग मतलब समझ रहे हो आप, किसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको डिबग करना. ओके. उसको सुधारने के लिए, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए वी यूज डिबगर्स. ओके. यूज दिस इफ यू वांट टू डेवलप और राइट जावा एप्लीकेशन. दिस इज यूज टू रन जावा एप्लीकेशन, राइट जावा एप्लीकेशन. अंडरस्टूड? यस. Now, where is Java used? Despite being nearly only 30 years old, it remains first or second most popular language globally. Okay, it is used in enterprise software, Android development, big data, web applications. Okay, backend development, बड़ी बड़ी sites का LinkedIn हुआ, आपका Amazon हुआ. Okay, web application में Java का use होता है. I mean most not I can't tell you, but the big companies use Java. Why? Secure. And the 4 pillars that we discussed of OOP, object oriented programming. This is why Java is being used in these things, enterprise software, Android development के लिए. अभी Kotlin का use करने लगे हैं, but Java is still widely used. Okay. Big data in web applications. What is the conclusion? Like what we learned about in these all slides, this is the crisp thing. Okay, it's the same. Java is powerful, mature, and versatile language. Yes, it is. Its history stems from a need for a platform independent language. We did not have platform independent language. Right ones run anywhere for embedded devices. Okay, its feature, that is OOP, robustness, portability, make it an industry standard for enterprise and mobile development. Yes. Key takeaway: Java is not just a language. It is a technology ecosystem. Java मतलब इतना सारा कुछ हमने पढ़ा, इसे हम क्या समझते हैं? ये सिर्फ एक language नहीं है भाई. It's a total technology ecosystem that powers the modern digital world. Okay, we are done here, I guess. Yes.